Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will focus on Laplace transform. Laplace transforms are actually a mathematical formulation for converting a complex problem into some simple domain, and after that we solve it in that domain and convert it again to the complex format. So what we call complex format, the time domain is actually complex for us because in every instant we have to check the response of a system. So for this reason we use Laplace transform and we convert time-based signal to frequency-based signal, and in frequency we get only, let's say, one frequency for a sinusoid. We solve the scenarios for that frequency, and after that we convert it back to the time domain. So if we want to shift some signal in time domain, we just convert it to frequency domain, do some experimentation with it in its mathematical form, and then we reconvert it back. So generally, what is transformation? Transformation is the conversion of one way of thinking to another way of thinking. So let's say we are having some problem, we take that problem, transform it, solve it, and after that we reconvert it to that domain from which we transferred it. Let's say I want to add two numbers, and one number is 5 and other is 10. So what I do, I first convert it to some algebraic form. Let's say A is equal to 5 and B is equal to 10, and then I solve it in that way of thinking. Let's say A plus B, and after that when I get the answer 5 plus 10, 15, this thing is here A plus B. So I don't write here A plus B, I write that this thing is 15. So here if we call this thing 8, 5, 10, so A and B are considered as 5 and 10, and after that we added it and we came to the conclusion that A plus B is 15. So this is how the transformation is about. In Laplace transform, we convert the problem from time domain signal to frequency domain signal, and here we solve that problem and again reconvert it to time domain signal. There are many other transformation such as the Fourier transform, Z transform, Value transform, Fourier. आप लोगों को पहले से पता होगा कि उसमें हमारे पास अगर कोई इस तरह का सिग्नल है, लेट्स से we find its frequencies, कि इसमें कौन कौन से frequencies है. लेट्स से F0 है, इसमें F1 है, F2 है, और फिर हम क्या करते हैं, इस हर एक फ्रीक्वेंसी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं कि A0 कितना है, A1 कितना है, A2 कितना है, और फिर हम टोटल सिग्नल को लिखते हैं कि x of t is let's say A0 cos of 2 pi F0 t plus A1 cos of 2 pi F1 t and so on. So इस तरह हम कन्वर्जन करते हैं from composite signal to simple frequencies, और फिर हर एक वेव जो हमारे पास आ जाता है हम सारों को फिर एड अप करते हैं और यही सिग्नल हमारे पास वापस बन जाता है. सो दिस इज अबाउट द Fourier transform. In Laplace transform, we take a signal in time domain and we convert it to complex frequency. Now this thing is not only omega, this thing is S is equal to sigma plus j omega. So this makes this equation a complex equation. If we check this thing, this is our real part, and if we check this thing, this is our imaginary part. So the real part is termed as the attenuation or gain in a equation in Laplace transform. ये आप याद रखें अपने साथ, बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को फिर ये समझ में आ जाएगा. Omega is termed as the vibrating component. So this is the frequency component
ऑफ द ट्रांसफॉर्म। सो हमारे पास लेट से एक वेव है, अगर उसमें एटीन्यूएशन नहीं है तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर इसमें एटीन्यूएशन है तो ये टाइम के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी, और अगर इसमें गेन है तो ये टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी। सो गेन, एटीन्यूएशन एंड कांस्टेंट। यहाँ पे भी एटीन्यूएशन है, लेकिन एटीन्यूएशन कितना है? 0 है। सो हम इन तीन इक्वेशंस, तीन ग्राफ्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? इसको और इसको बाय एक्सपोनेंट। सो e पावर 0 वुड बी 1, अ कांस्टेंट लाइन। e पावर minus x or minus t would be a decaying thing, and e power plus x would be an increasing thing. इसके अलावा अगर हम इस फिगर में देखें तो कंटिन्यूस फोरियर ट्रांसफॉर्म है। सो जिस तरह हमारे पास सिग्नल है, यहाँ पे टाइम डोमेन कंटिन्यूस है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कंटिन्यूस के लिए हम कर सकते हैं और लेप्लास भी कर सकते हैं। इन दोनों में जो फर्क है वो आप अपने साथ ये नोट कर ले कि द ओनली रीजन वी यूज लेप्लास ट्रांसफॉर्म इज बिकॉज लेप्लास ट्रांसफॉर्म इज यूज फॉर रियल वर्ल्ड सिनारियो। And what is a real world scenario? Anything that starts from a particular instant t equal to 0 या फिर t equal to t0। So ये हमारे पास रियल वर्ल्ड सिनारियो होता है। जब आप लेट से एक बटन ऑन करते हैं, हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक बटन है और ये आप ऑन करते हैं t equal to 0 पे। इसका मतलब है कि ये टाइम जब 0 था उस टाइम पे हमने ऑन कर दिया और इसके बाद ये स्टार्ट है और ये जा रहा है। सो इस चीज़ को हम कहते हैं रियल वर्ल्ड सिनारियो। अब अगर हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी हो तो फ्रीक्वेंसी पहले से अगर एक एक्सिस पे हम ड्रॉ करें तो फ्रीक्वेंसी इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर ये लेट से यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो फिर तो ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं हुआ ना। व्हाट इज पीरियोडिक सिग्नल? कि जो एक ख़ास टाइम में रिपीट हो और फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये जा रहा हो। लेकिन अगर हम इस सिग्नल को देखें तो ये क्या है? 0 पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से जा रहा है। इससे पहले ये तो या 0 हो गया, कोई और इसकी स्टेट होगी, तो इसका मतलब है कि ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। सो पीरियोडिक सिग्नल के लिए फोरियर सीरीज है और फोरियर ट्रांसफॉर्म्स है, और नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसी वजह से अगर हम देखें तो इसमें ये जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है या टाइम है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक रीजन कि हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं फॉर रियल वर्ल्ड सिनारियो। तो जब भी कोई सर्किट आएगा जिसमें स्टार्ट स्टॉप होंगे या फिर वो ना भी हो तो अटेन्यूएशन वगैरह हो तो हम क्या यूज करेंगे? लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे। अच्छा, if we want something to solve in using Laplace transform, what we will do? We will take that thing and convert it using Laplace transform, solve it, and then we will reconvert it using inverse Laplace transform. तो इसको हम इस तरह के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, Laplace of a function, और इस प्रोसेस को हम inverse Laplace of a function which is already converted to Laplace। इसमें आप अगर और करें तो मैंने यहाँ पे लिखा f of t और यहाँ पे लिखा f of s। इसका मतलब है कि जब हम लेप्लास लेंगे किसी इक्वेशन का तो वो x of t होगा या f of t होगा, टाइम में वो पहले से होगा, टाइम डोमेन में वो पहले से होगा। और जब हम इसको वापस कन्वर्ट करेंगे तो उस टाइम वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो पहले से होगा और हम उसको टाइम में कन्वर्ट करें तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? f of t होगा। और ये पहले वाले का आंसर क्या होगा? f of s होगा। सो f of s को हम वापस कन्वर्ट कर रहे हैं और f of t को हमने कहाँ से कहाँ पे कन्वर्ट किया? यहाँ पे कन्वर्ट करके आ गया है, लेकिन यहाँ से हमने वो यूज किया है। फर्स्ट से वो यूज होके क्या बना है? f of s बना है और f of s से फिर वापस f of t बना है। सो दिस इज व्हाट Laplace transform does if we use it for an equation or for a problem। इसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? वो ये है कि we will take the time starting from 0 to infinity and we will
put the value of this time in this equation और हम अपना फंक्शन पुट कर लेंगे इसके साथ. So let's say हमारा फंक्शन है let's say 5. So we want to convert let's say f of t is equal to 5. So हम क्या करेंगे, 0 to infinity integration of 5 और उसके साथ लिख लेंगे e power minus st dt. ये हमारे पास क्या बन जाएगा, f of s. So this is what we will do for a Laplace transform. This is just an example. इसको अगर आप सॉल्व करें तो उसमें क्या पुट करेंगे, ये dt है तो इसका मतलब है t की वैल्यूज हम इसमें आफ्टर टेकिंग दी इंटीग्रल हम ये पुट करेंगे. ये जो s है ये कम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा इसके अंदर है. ये जो t है ये रियल टाइम है हमारा. तो यहाँ पे अगर हम कन्वर्जन में इसके दो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें देखें तो t बिलोंग्स टू रियल एंड s बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स. हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन d by dt समथिंग. तो d by dt को अगर हम इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी लेके तो दैट वुड बी इक्वल टू j ओमेगा. और अगर इसी d by dt को अगर हम लेके इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी तो फिर क्या होगा, सिग्मा प्लस j ओमेगा. इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है लेकिन एटीन्यूएशन नहीं है, इसमें एटीन्यूएशन या गेन भी है. तो इसका मतलब है कि दिस d by dt इज एक्चुअली और s. तो अगर हमारे पास कोई इस तरह की इक्वेशन हो कि L di by dt is equal to v, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि L s I is equal to v, जो कि हम पहले यूज भी कर रहे हैं. अच्छा, so we have graphical solution of this equation and we have the mathematical solution of these equation using Laplace transform. This is the general overview of our s plane. So s is equal to sigma plus j ओमेगा. इसमें सिग्मा रियल है तो वो x एक्सिस पे होगा और j ओमेगा y एक्सिस पे होगा. सो यहाँ पे कहीं भी हमारे पास एक वैल्यू एक फंक्शन की आ सकती है तो वो फिर हम इस तरह प्लॉट करते हैं. दिस कंजुगेट इज समटाइम यूज फॉर एन इक्वेशन के जिसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इस तरह की कोई चीज़ हो. तो चूंकि कंजुगेट मल्टीप्लाई करने से इस फॉर्म में आ जाते हैं तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग कंजुगेट हेयर. लेकिन ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है, जस्ट लेट इट बी हेयर. आगे जब ये आएंगे एग्जांपल में तो फिर हम आसानी से समझ सकते हैं. अच्छा, जब भी हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज है. वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो कोई नंबर्स आपस में या दो फंक्शंस आपस में एड अप हो रहे हैं और हम उसका कंबाइन लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले तो लेप्लास ऑफ इंडिविजुअल एंड लेप्लास ऑफ कंबाइन वुड बी सेम. सो वी आर एडिंग अप these two in Laplace as well. अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेप्लास में भी मल्टीप्लाई होगा. अगर किसी इक्वेशन के साथ हम e पावर माइनस at मतलब कोई एटीन्यूएशन या कोई गेन मल्टीप्लाई करें तो लेप्लास में वो फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे असरअंदाज होगा. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी विच वी विल सी इन द फ्यूचर. अगर हम एक वेव को रियल में शिफ्ट करें, लेट्स से ये वेव इस तरह है और हम इसको इस तरह कर ले, थोड़ा सा टाइम में हम इसे आगे कर ले तो ऑन फ्रीक्वेंसी एक्सिस उसका जो एक्सपोनेंट है वो हमें बाहर नजर आएगा आफ्टर टेकिंग दी लेप्लास ट्रांसफॉर्म. सो अगर हम टाइम में बाहर कोई चीज एक्सपोनेंट लगाएं वो अंदर जाएगा, अगर हम कोई अंदर कोई एक्सपोनेंट लगाए वो कोई टाइम लगाए वो बाहर आएगा. सो दिस इज व्हाट हैपेंस फॉर टाइम शिफ्ट एंड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट. स्केलिंग इस तरह है कि अगर हम टाइम में कोई चीज ज्यादा कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी में वो कम होगी, अगर हम फ्रीक्वेंसी में ज्यादा कर रहे हैं तो टाइम में वो कम होगी. सो दिस इज जस्ट लाइक द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम रिलेशन कि अगर हम किसी चीज का टाइम लेट्स से एक वेव है और ये इतने टाइम में अपना साइकिल प्रोड्यूस कंप्लीट कर रही है, अगर हम इसकी ये जो ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन है ये छोटा करें तो इसका क्या मतलब है
इसका मतलब है कि हमने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, टाइम हमने इसका कम कर दिया है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इक्वेशन. अच्छा, नाउ वी विल स्टडी सम सिंपल लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज द पार्ट फर्स्ट. तो हम जरा सिंपल से उसमें सॉल्व करेंगे. So this is the impulse function for which we want to calculate the Laplace transform. Impulse function क्या चीज़ है? In impulse function we are having its area 1 at t equal to 0 and 0 elsewhere. Why we call it area? Because if we study the structure of an impulse function, let's say sigma of t equal to 0 पे इस तरह का एक impulse है, तो हम इसकी जो x एक्सिस पे लेंथ है उसको कंसीडर करते हैं वेरी स्मॉल. तो डेल x को हम सपोज करते हैं कि ये एप्सिलॉन है सच दैट एप्सिलॉन इज टेंड्स टू 0, और इसकी हाइट को हम सपोज करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि इन्फिनिटी को अप्रोच करी. तो हम उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? वी से दैट y इज इक्वल टू 1/epsilon. So since the epsilon is very small, so this would be equal to, this would be tending to infinity. Acha. Now what we do, we use this is the only case के जिसमें हम इंटीग्रेशन नहीं लेते और सैम्पलिंग थ्योरम इस्तेमाल करते हैं. सो what basically impulse is, impulse अगर हमारे पास कोई इस तरह का फंक्शन हो और हम एक ख़ास जगह पे impulse इस पे अप्लाई करें, तो उस फंक्शन की लेट से 3t² + 5t + 2 उसी वैल्यू पे, लेट से यहाँ पे 2 है, हम एक वैल्यू ले लेते हैं और वो उसका आंसर आ जाता है. सो x of 2 is 3, 2² + 5, 2 + 2. सो यहाँ से एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई. अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो हमने एक वैल्यू यहाँ पे ली है, इसके अलावा ये कहीं और है ही नहीं, और हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो हम क्या फाइंड करेंगे? हम इसका यहाँ साइड भी फाइंड करें और ये भी, जो कि क्या है? जो कि गलत है. सो अगर हमारे पास कोई इम्पल्स फंक्शन आ जाए और हम उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें f of s, तो दैट वुड बी इक्वल टू फ्रॉम 0 to infinity f of t e⁻ st dt, जो कि लेप्लास की डिफिनीशन है, 0 to infinity sigma of t e⁻ st dt. नाउ यहाँ पे t है, तो जहाँ पे कहीं इक्वेशन पे t हो के x of t, तो दैट मीन्स के x of t इक्वल टू 0. अगर यहाँ पे इस तरह हो के x of t - 5, तो t वुड बी इक्वल टू 5. सो ये यहाँ पे पुट करते हैं कि t यहाँ पे कितना है? 0 है. तो अगर हम इसमें t की वैल्यू पुट करें, that would be equal to e⁻ s into 0, which is equal to 1. Why we have neglected this thing? Because ये सैंपल की वजह से, एक सैंपल की वजह से इसके यहाँ पे और यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं. तो अगर कहीं पे वैल्यू ना हो तो हम इसका मतलब है कि एक ख़ास टाइम पे सिर्फ ये फंक्शन अकर कर रहा है. अब इसकी वैल्यू सिर्फ टाइम डोमेन में हमें नज़र नहीं आ रही. अगर हम इस 1 को फ्रीक्वेंसी डोमेन में बनाए, क्योंकि f of s है, तो s अगर हम यहाँ पे कोई भी पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 1000 पुट करें, सारों जगहों पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इम्पल्स फंक्शन. अगर हम स्टेप फंक्शन करें तो स्टेप फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, t इक्वल टू 0, इसको u of t हम सपोज करते हैं, वी राइट इट लाइक दिस, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा टाइम पे. सो हम इसका अगर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, व्हाट वुड बी दैट वुड बी फ्रॉम 0 to infinity u of t e⁻ st dt. और इसमें u की वैल्यू पुट करते हैं. u की वैल्यू क्या है? फ्रॉम 0 to infinity ये क्या है? 1 है. सो 0 to infinity 1 e⁻ st dt. अब हम उस तरह सिग्मा वाला तरीका इस पे अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर हैविंग वन वैल्यू ऑल ओवर दिस टेरेन. सो हमने ये पुट किया और अब इसको हम जरा सॉल्व करें तो e⁻ st डिवाइडेड बाय -s फ्रॉम 0 to infinity इंटीग्रेशन हमने ले ली.
ई पावर ए टी की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू टी, ई पावर ए टी डिवाइडेड बाय